ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਐਨੀ ਕੰਡਕਟਰ ਔਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਟਸ ਐਂਡ। ਸੋ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਓਮਸ ਲਾਅ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ। resistance of a system of ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਸਰਕਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਸਰਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਉਹਦੇ ਐਂਡਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਮਸ ਲਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ V is equal to I into R। ਸੋ V is potential difference across the ends of conductor, I ਕੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਐਂਡ R ਸੀ resistance of conductor। ਸੋ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਮਸ ਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਆਫ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਵੇ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਦੈਮ ਇਨ ਪੈਰਲਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੀ ਬੈਟਰੀ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ, ਦੈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੈਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ। ਸੋ ਐਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲ A ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅੱਗੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ X। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ, ਦੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ, ਦੈਨ ਥਰਡ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ Y ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ X Y ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ R1 R2 R3। ਸੋ ਐਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ of resistance 1 ohm 2 ohm 3 ohm respectively, means एक 1 ohm ਦਾ ਹੈ of resistance 1 ohm 2 ohm and 3 ohm। ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ 6 ਵੋਲਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ 6 ਵੋਲਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਬੈਟਰੀ। ਸੋ ਫਲੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗੇਨ
सो इस तरह की है, क्लोज पाथ फॉलो कर रहा है करंट। सो ये हो गई अपनी करंट की डायरेक्शन। हुण आप फस्ट ऑफ ऑल की करांगे, पहले एमीटर के उपर की है रीडिंग नोट करांगे। सो एमीटर के उपर किस चीज़ की रीडिंग आएगी, करंट की रीडिंग आएगी। सो जो करंट की है सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है, वी विल गेट द रीडिंग ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। मान लो वो वैल्यू अपने को आ रही है, करंट की रीडिंग है कुछ भी सपोज कर लो आई, लेट द करंट भी आई एम्पीयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, जो की है ਉਹਦਾ प्लग निकालन तो बाद निकाल के ਆਪਾਂ एमीटर की जो पोजीशन है ਉਹਨੂੰ चेंज करांगे। सो पोजीशन ਨੂੰ चेंज करके ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ हटा के बिटवीन एनी टू रजिस्टर्स की है ਉਹਨੂੰ प्लेस करांगे। सो जब ਉਹਦੀ पोजीशन चेंज की ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ एमीटर ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਦਾ प्लग ऑन कर ਦਾਂਗੇ, मतलब ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਦ रीडिंग ऑफ एमीटर, दैन अपने को जो करंट की रीडिंग आएगी वो आप नोट करांगे। अगेन उस तो बाद की है एक होर चेंज लिया सकते हैं पोजीशन दे विच, फिर तो की है की नू ऑफ करके आप की है इत्थे प्लेस करो या होर किते भी सर्किट दे विच इत्थे प्लेस करो, इत्थे प्लेस करो। सो ज़्यादा बैटर की है तुसी रजिस्टर्स दे इन बिटवीन प्लेस कर करके देखो और चैक करो कि तुहाडे कोल करंट की रीडिंग की आ रही है। सो अगर इस तरह आप रीडिंग्स लईए 3-4 बार पोजीशन चेंज कर करके एमीटर की अगर आप रीडिंग ले रहे हैं, दैन अपने को जो करंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा की आएगी, सेम आएगी। सो की इत्थों दी कंक्लूड होया कि जो भी आप रजिस्टर्स नू सीरीज़ दे विच जॉइन कर रहे हैं, उस केस दे विच करंट की वैल्यू की है पूरे सर्किट दे विच की रहिंदी है, कॉन्सटेंट रहिंदी है। सो ड्यूरिंग द सीरीज़ कॉम्बीनेशन या इन द सीरीज़ कॉम्बीनेशन, द सीरीज़ combination of resistors current remain constant throughout। so एक ही है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, out throughout means at any point। सो किते भी किसी भी पॉइंट के उपर अगर आप जाके चेक करिए, दैन हर एक पॉइंट के उपर की अपने को करंट की बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। इहदा ये मतलब भी है कि हर एक रजिस्टर दे विचों, चाहे इहदी गल करिए फर्स्ट दी, इहदी गल करिए या थर्ड की गल करिए, तिन्ना दे विचों जो करंट पास हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। मीनस आई करंट ही ये विचों पास हो रहा है, आई ही ये विचों और आई ही ये विचों, मीनस ये करंट की कोई डिवीजन नहीं हो रही है। सो एक ही अपना सीरीज़ कॉम्बीनेशन। सो सीरीज़ अगेन मैं एक बार बोलांगी कि सीरीज़ मीनस एंड टू एंड आप की इन्होंने जॉइन किया होया है तीनों रजिस्टर्स नूं। सो इस तो बाद आप हुण गल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपां नूं की है एक वोल्ट मीटर चाहिए है। वोल्ट मीटर नूं आपां कनैक्ट कर रहे हैं बिटवीन दीज टर्मिनल्स बिटवीन एक्स एंड वाई। सो इत्थे की है मैं एक वोल्ट मीटर जॉइन कर रही हूँ। ओके सो इत्थे भी नाल इहदे की है टर्मिनल्स मैंशन करने होंगे। हमेशा ये ख्याल रखना है कि आप टर्मिनल्स विद रिस्पेक्ट टू बैटरी शो करते हैं। सो पॉजिटिव, सो जो फर्स्ट टर्मिनल आ रहा है वो एमीटर का पॉजिटिव, दूसरा नैगेटिव। उसी तरह जब मूव करते हुए अपने को फर्स्ट टर्मिनल जो आ रहा है उन्होंने आप पॉजिटिव मैंशन करांगे। सो ये सेम रहेगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नैगेटिव आएगा। सो सिमिलरली ये भी आप शो कर सकते हैं कि करंट पास हो रहा है थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। दैन वोल्ट मीटर जॉइन करने नाल हुण की होएगा, आप रीडिंग लवांगे पोटेंशियल डिफरेंस दी बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। बिकॉज आपको पता ही है कि वोल्ट मीटर किस चीज़ लिए यूज़ होता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। सो अगर आप एक्स वाई के उपर वोल्ट मीटर जॉइन किया है, मीनस अपने को इतने वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस की होएगा प्रेजेंट होएगा। मान लो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ वैल्यू आ रही है, लेट दैट बी वी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो इस तो बाद आप की चेक करांगे। सो हुण अक्रॉस द कॉम्बीनेशन आप पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया कि कितना आ रहा है। हुण आप ईच रजिस्टर के अक्रॉस की है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करांगे। ईच रजिस्टर मीनस ये अबाउट, दैन ये अबाउट चेक करेंगे और दैन ये अबाउट। सो वो लिए आपको की है वारी वारी वोल्ट मीटर की पोजीशन की है चेंज करनी पएगी। सो हुण इस तो बाद आप की करांगे, अगेन प्लग नूं की है ऑफ करांगे। सो ये की है प्लग निकालिया की अगेन जो वोल्ट मीटर की पोजीशन है हुण आप की है इत्थे लेके आवांगे। सो अपने को जो नेक्स्ट आएगा सेम ही डायग्राम नीचे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके देन पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह इत्थे ओके। एम मीटर आप किते भी लगा सकते हैं, इन सीरीज़ लगाना है एम मीटर। अगर मैं इत्थे लगावां, सो इत्थे अगर नेगेटिव है दैन इत्थे भी क्या आएगा नेगेटिव, और दूसरी साइड पॉजिटिव। नाल दी नाल आप इत्थे की शो करिए की, दैन ऊपर इत्थे पॉइंट अपने को एक्स।
उस तो बाद की अपने कोल रजिस्टर R1 then R2 R3 then again ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟ ਦੀਸ ਟੂ ਟਰਮੀਨਲਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ X P ਸੋ X P Q R बिकॉज R1 R2 R3 ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ S ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ T and Y। So R1 is between X and P, R2 is between Q and S and R3 is between T and Y। So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਨਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਟਰਮੀਨਲਸ ਆਫ R1 ਇੱਥੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1 ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, R2 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ R3 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ V ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ V1 V2 ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ V3 ओके ਹੁਣ V1 V2 V3 ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ R2 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ V2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, R3 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ V3। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 1 by 1 ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ R1 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ V1, ਇੱਧਰ V2 ਔਰ ਇੱਧਰ V3 ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ V ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ V1 V2 ਔਰ V3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ आफ्टर नोटिंग द वैल्यूज़ कि जो इन्हों का सम है V1 + V2 + V3 वो किहदे बराबर आएगा, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल कॉम्बीनेशन। सो जो तिन्नों नू ऐड करिए दैन तिन्नों नू ऐड करन ते अपने कोल किहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो ये दो पॉइंट्स दे अक्रॉस प्रेजेंट है। सो अपने कोल वी कैन राइट V = V1 + V2 + V3। सो ये आप खुद देखिया एक्सपेरीमेंटली कि दैट ये रिलेशन आ रहा है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर आप इंडिविजुअली नोट करिए और अगर आप पूरी कॉम्बीनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस नोट करिए। दैन उस तो बाद आप गल करिए करंट की, बिकॉज करंट पहले ही मैं दस चुकी हाँ कि करंट थ्रू आउट द सर्किट की है कॉन्स्टेंट रह रहा है। थ्रू आउट द सर्किट कॉन्स्टेंट मीनस किसी पॉइंट के उपर भी वैल्यू चेक करिए करंट की सेम आएगी और R1 R2 R3 तिन्ना दे विचों की है सेम अमाउंट ऑफ करंट की है फ्लो कर रहा है। सो ड्यूरिंग दिस पार्ट जो रजिस्टर्स सीरीज़ दे विच हैं I इज़ कॉन्स्टेंट। सो I ऊपर भी मैं लिखा है I की है कॉन्स्टेंट। सो हुण जो अपने कोल 3 रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 अगर आप इन्हां दी जगह ते एक इक्विवेलेंट रजिस्टर यूज़ करिए, इक्विवेलेंट मीनस कि जो इफेक्ट तीनों दे रहे हैं। सो इन्हां दी बजाय अगर आप एक रजिस्टेंस यूज़ करिए, मान लो उहदी रजिस्टेंस की है कैपिटल R। सो वो एक रजिस्टर यूज़ करके जिहदी की रजिस्टेंस कैपिटल R है, अपना करंट थ्रू द सर्किट भी सेम रह रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स वो भी सेम रह रहा है सच दैट करंट भी I रह रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी अपना V रह रहा है। दैन इन दैट केस मैं एक बार फिर रिपीट करांगी आपां की कीता R1 R2 R3 3 रजिस्टर्स यूज़ करने की बजाय इन्हां दे ही इक्विवेलेंट एक रजिस्टर यूज़ करिए। मतलब जो इफेक्ट इन्हां तिन्नां दा है वही की है एक रजिस्टर यूज़ करिए आपां, ओहदी मान लो रजिस्टेंस की है कैपिटल R है, वो आपां फाइंड आउट करांगे कि ओहदी रजिस्टेंस कितनी होएगी, ये थ्रू आपां फाइंड आउट करांगे। सो एक रजिस्टर यूज़ किया जिहदी रजिस्टेंस कैपिटल R है सच दैट कि वो यूज़ करन दे नाल अपना करंट भी सेम रह रहा है जिन्ना करंट पहले सी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स भी की है बिल्कुल सेम रह रहा है। दैन अपने कोल ये 3 वेरीएबल्स ने। हुण अगर आप ओम्स लॉ लगाइए ये ऊपर, सो एज वी नो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट V = I मीन्स करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इनटू द रेजिस्टेंस। सो V = IR। मान लो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो अपने को एक इक्वेशन की आ गई V = IR। सिमिलरली अगर आप हम कैलकुलेट करना होवे V1 V2 V3, सो इंडिविजुअली अगर आप ये ऊपर ओम्स लॉ लगाइए दैन ये ऊपर
दैन ये उपर दैन अपने कोल की रिजल्ट आएगा। सो ये मैं पिछे वाला पार्ट रब कर रही हूँ। सो वी विल गेट, सो अगर ओम्स लॉ लगाइए सिर्फ इस रजिस्टर के अक्रॉस दैन इत्थे अपने कोल पोटेंशियल डिफरेंस है V1। सो ये नाल कंपेयर करते हुए V1 विल बी इक्वल टू करंट कितना पास कर रहा है ये I इंटू रजिस्टेंस R1। सो V1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप लिख सकते हैं V2 की वैल्यू कितनी आएगी, करंट पासिंग थ्रू दैट रजिस्टर वो सेम ही है I इंटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस V3, करंट पासिंग थ्रू इट इंटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज R3। सो आप एक बार की है पूरा होल कॉम्बीनेशन ते फॉर्मूला लगाया ओम्स लॉ, एक बार की है इंडिविजुअली यूज़ किया। हुण आप की है सैकेंड एंड थर्ड इक्वेशन नू अगर यूज़ करिए इन फर्स्ट इक्वेशन। सो आप की है V की वैल्यू पुट करांगे, V1 की वैल्यू पुट करांगे, V2 की और V3 की। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ जो अपने कोल आएगा रिलेशन दैट इज़ V की जगह पुट किया आप IR इज़ इक्वल टू V1 की जगह आप पुट करांगे IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू की है IR3। दैन I की है आप कैंसल आउट कर सकते हैं कॉमन लैके। सो सारिया टर्म्स के I कॉमन अंदर की आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो वी गेट R या फिर आप इनू और R की जगह आप इनू R नीचे आप की लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट S फॉर सीरीज। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये अपने कोल की है फाइनल रिजल्ट आया है। सो इत्थों की पता लग रहा है कि जदों आप रजिस्टर्स ज्वाइन करते हाँ इन सीरीज़। सो सीरीज़ के जो भी आप डिफरेंट रजिस्टर्स ज्वाइन करांगे दैन जी पूरी कॉम्बीनेशन की जो रजिस्टेंस आएगी, जो अपना मीनस आप टॉपिक पढ़ रहे हैं रजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ सीरीज़, दैन उन्होंने आप किस तरह लिखांगे दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टेंसिस। एक बार फिर रिपीट कर रही हाँ मैं कि आप की किया शुरुआत दे विच सर्किट ड्रॉ किया मैं सीरीज़ दे विच 3 रजिस्टर्स ले। सो वो की है पहले तो आप ये चेक किया कि एमीटर यूज़ करके प्लस एमीटर की जो पोजीशन वारी वारी की है वो चेंज करके आप चेक किया जो अपने कोल वैल्यू आ रही है करंट की वो सेम वैल्यू आ रही है। सो इतों आप की रिड्यूस किया कि थ्रू आउट द सर्किट जो आप रजिस्टर्स में सीरीज़ के ज्वाइन करते हैं वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स कॉन्सटेंट और हरेक रजिस्टर के थ्रू की है सेम करंट की है पास कर रहा है। उस तो बाद आप की है वोल्ट मीटर अटैच करके XY के अक्रॉस की है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया। दैन आप की है इंडिविजुअली तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस की है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया दैट इज़ V1 V2 और V3। दैन उस तो बाद की आप थ्योरेटिकल पार्ट से आए आप ओम्स लॉ लगाया पहले ओवरऑल ऑन द होल कॉम्बीनेशन। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ਲਈ कैपिटल R सच दैट करंट कितना पास कर रहा है सर्किट के थ्रू I और पोटेंशियल डिफरेंस भी की है अपने कोल V। दैन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR। दैन आप इंडिविजुअली V1 V2 और V3 ते ओम्स लॉ लगाया और उन्होंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की। ऑल्सो वी नो जो अपने को रिलेशन आ रहा है बिटवीन द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसिस एंड द वन सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस जो आप की है एज अ कॉम्बीनेशन ले रहे हैं पूरी चीज़ में। दैन वो रिलेशन की सी V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दैन आप सारिया वैल्यूज़ में इतने सबस्टिट्यूट किया और अपने को जो रेजिस्टेंस आ रही है जो ओवरऑल मीनस कॉम्बीनेशन की रेजिस्टेंस जिन्होंने आप बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टर्स वैन दे आर कनैक्टेड इन सीरीज़ कि जो अपने को कॉम्बीनेशन है रजिस्टर्स का किहड़ा कॉम्बीनेशन है जो उन्होंने सीरीज़ के ज्वाइन किया है दैन उस पूरे का रिजल्ट अपने को की आएगा आप सारी रजिस्टेंसिस की करांगे एड अप करांगे। सो अगर फॉर एग्जांपल लेना हो कि अपने को इधर 1 2 3 ओम है मतलब 1 ओम 2 ओम 3 ओम तीनों की वैल्यू गिवन है दैन जो पूरी कॉम्बीनेशन की रेजिस्टेंस होएगी वो कितनी होएगी दैट विल बी 1 + 2 + 3 सो दैट इज़ इक्वल टू 6 ओम। सो एक ही से अपना रिजल्ट सी व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंड इन सीरीज। सो अपना नेक्स्ट पार्ट की है व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंड इन पैरेलल। सो हुण आप शुरू करन जा रहे हैं व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंड इन पैरेलल कॉम्बीनेशन। सो इन पैरेलल कॉम्बीनेशन के लिए पहला कि आप सर्किट डायग्राम देखते हैं ये तो सर्किट डायग्राम के विच की है अगेन पहले बैटरी अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैन इतने आप शो कर रहे हैं एमीटर सो नेगेटिव दे नाल नेगेटिव इधर पॉजिटिव दैन की। सो ये सब कुछ तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। ऊपर की है हुण आप
पैरेलल कॉम्बिनेशन शो करांगे। अगेन आप की है 3 रजिस्टर्स ले रहे हैं R1 R2 R3। सो लेट दिस पॉइंट बी X एंड दिस पॉइंट बी Y। सो इसी तरह एक ऊपर शो कर रही हैं और एक नीचे वाल। सो इस तरह एक ही हन 3 रजिस्टर्स शो किए हैं मैं, तीनों की हन पैरेलल दे विच हन, मतलब तिना दे जो एंड टर्मिनल्स हन वो बिल्कुल सेम पॉइंट के ऊपर ही ज्वाइन किए हुए हैं मैं। दिस इज़ X, दिस इज़ Y, मान लो दिस इज़ R1 R2 एंड दिस इज़ R3। देन सर्किट नो कंप्लीट करिए। देन डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव अगेन। ऑल्सो आप इत्थे भी शो कर सकते हैं। इत्थे हजे मैं जस्ट एरोज ही लगा रही हाँ, हजे कोई करंट नहीं मैंशन किया कि कितना करंट पास कर रहा है या कितना नहीं। सो आप हुण की है वोल्ट मीटर भी मैं नाल दी नाल ही शो कर रही हाँ। सो वोल्ट मीटर आप की है अक्रॉस द टर्मिनल्स X Y इत्थे शो करांगे। सो इत्थे की है वोल्ट मीटर की पोजीशन। सो प्लस प्लस माइनस। सो ए आप शो कर रहे हैं इन पैरेलल मीनस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3। सो पहले आप गल करिए करंट बारे। हुण जो करंट है ये एमीटर यूज़ किया है। सो सब तो पहले आप की है पूरा सर्किट कंप्लीट करने तो बाद की नू की करांगे प्लग करांगे, मतलब विच की नू ऑन किया। दैन उहदे नाल एमीटर के उपर अपने को रीडिंग आएगी। कोई भी करंट की रीडिंग आ रही है, मान लो दैट रीडिंग इज़ कैपिटल I। उस तो बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस की गल करिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने के लिए जिमें कि मैं शो किया ही है, आप वोल्ट मीटर अटैच किया है अक्रॉस X Y। सो इत्थे अपने को जो वोल्ट मीटर ते रीडिंग आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग आएगी अक्रॉस X Y पॉइंट्स। दैन मान लो वो वैल्यू कितनी आ रही है अपने को V वैल्यू। हुण अगर आप ध्यान नाल देखिए कि अगर आप यही वोल्ट मीटर, सो जो इत्थे अपने को पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वही वैल्यू की होएगी R1 के अक्रॉस, वही वैल्यू की होएगी R2 के अक्रॉस, वही वैल्यू की होएगी R3 के अक्रॉस। एक ही है आप अलग अलग की है वोल्ट मीटर की पोजीशन चेंज करके चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप इत्थों पोजीशन यदि चेंज करिए वोल्ट मीटर नू हटाइए, सो उन्होंने रिप्लेस करके आप R1 के उपर वो पोजीशन सैट करिए। सो उत्थे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिकॉज आ जो पॉइंट्स हैं इत्थे ही कनेक्टेड हैं। सो R2 के भी दोनों टर्मिनल्स इत्थे ही कनेक्टेड हैं। सो R3 भी की है इवेंचुअली इत्थे ही कनेक्टेड है। सो जो वैल्यू इत्थे आ रही है वही वैल्यू R1 के अक्रॉस होएगी, मीनस वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस है और सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस की है R3 के अक्रॉस होएगा। सो पिछले केस में आप की बोल रहे थे जो करंट की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रह रही है अलॉन्ग या थ्रू ईच रजिस्टर। इस केस विच की है जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो की है कॉन्स्टेंट रह रही है थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर्स। सो हुण की चीज़ रह गई ये हुण अगर आप करंट नोट करिए थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर्स कि वो सेम होएगा या डिफरेंट होएगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ X Y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ X। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ फर्स्ट रजिस्टर, मान लो ये पॉइंट है Y। देन ऊपर हुण जो एमीटर है मान लो मैं पहले की है R1 दे नाल जॉइन कर रही हाँ। सो इत्थे की है मैं एमीटर प्लेस किया। और इसी तरह एक नीचे रजिस्टर आएगा। सो R1 R2 R3 बस इनू थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया बिकॉज इत्थे आपां की है एक एमीटर इंसर्ट करना सी। सो एक की है R1 R2 एंड R3। अगर आप नाम देना होवे पॉइंट्स नू लेट L M P Q, R नहीं यूज़ कर रहे बिकॉज रजिस्टर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं S T। दैन अगे उसी तरह कंटिन्यू है सर्किट। सो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मैं शो किया है इन्ना पार्ट। सो इत्थे आपां की कीता वोल्ट मीटर नू हटा के वोल्ट मीटर हटाता प्लस एम मीटर भी नीचों दी आपां की है हटाया। एम मीटर की पोजीशन आपां इत्थे रखी है। सो एम मीटर अगर इत्थे लगा रहे हैं सो पॉजिटिव इत्थों स्टार्ट हो रहा सी
ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਟੂ ਟਰਮੀਨਲਸ ਆਫ R1 ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮੀਟਰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ R1 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੇਮ ਆਏਗੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ XY ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ R1 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੋਏਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਟੂ ਟਰਮੀਨਲਸ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ V ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ I1 ਐਂਡ ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ I2 ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ R3 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ I3 ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ these three ਕਰੰਟਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I is equal to I1 plus I2 plus I3 ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ V is equal to V1 plus V2 plus V3 ਔਰ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ I is equal to I1 plus I2 plus I3 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ RS ਦੀ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ these three resistors such that ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਓਮਸ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਓਮਸ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨੋ V is equal to I into R ਸੋ ਅਗਰ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ V over R P ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ RP ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ V is equal to IR ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ V is equal to I into RP ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ V over RP ਮਾਰਕ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I1 I2 I3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਟਸ ਹਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ I3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਮਸ ਲਾਅ I1 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ V ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ V ਲੇਕਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ R1 ਸਿਮਿਲਰਲੀ I2 ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੇਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R2 I3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ V same potential difference over R3 so if this is third equation so ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ I1 I2 I3 ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 by 1 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ V over RP is equal to I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ V over R1 I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ V over R2 then lastly V over R3 similarly V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ V ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ then V over RP will be equal to V common अंदर की आएगा 1 over R1 1 over R2 plus 1 over R3 V and V gets cancelled so अपने को जो final result आ रहा है मैं इत्थे लिख रही हाँ box दे विच so we get 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 so this is the final result ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ resistors ਨੂੰ join ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ in parallel so ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ define ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ conclude ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ
ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ then the reciprocal of that resistance, so the value of the reciprocal of that resistance in case of parallel combination will be equal to the sum of the reciprocals of individual resistances. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, the value of equivalent resistance in case of parallel combination, मतलब ਉਹਦਾ reciprocal ਹੈ, the reciprocal of equivalent resistance in case of parallel combination ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, is equal to the sum, ਕਿਹਦਾ ਸਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, reciprocals ਦਾ ਸਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ reciprocals, individual resistances ਦਾ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ RS is equal to ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ R1 plus R2 plus R3 up to so on। अगर आप पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल अगर सेम वही एग्जांपल लइए कि अगर आप 1 2 3 वैल्यू पुट करिए देन आपने कोल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 1/RP is equal to 1/1, so 1/2 plus 1/3। देन आप की लवांगे इत्थे LCM, so 6 प्लस 3 जिमें तुहानूं पता ही है कि LCM 3 2 6 LCM लिया, इनू डिवाइड किया 6 आया, इहदे नाल मल्टीप्लाई किया, अगेन इत्थे डिवाइड करन ते 3 आया, इहदे नाल मल्टीप्लाई किया 3। सो ये चीज़ आपां पहला भी कर चुके हाँ। देन 2 देन 5 plus 6 11/6। देन RP कितना आएगा अपने को, टेकिंग द रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स बिकॉज अपने को 1/RP की वैल्यू आई है 11/6। सो RP कितना आ जाएगा टेकिंग द रेसिप्रोकल्स 6/11 ohms। सो एक जनरल कोई एग्जाम्पल लैके जस्ट क्लीयर करने लिए मैं समझाया कि आप इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बीनेशन जो पूरी कॉम्बीनेशन की रेजिस्टेंस होंगी है आप कितना फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस मैथड दैट 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। सो इस तो बाद अगर आप गल करिए कि रेजिस्टेंसेस नू सीरीज़ विच ज्वाइन करन दी बजाए, सो आप हुण गल कीती सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਸੋ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ सीरीज़ कॉम्बीनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो करंट ਦੀ वैल्यू है थ्रू आउट द सर्किट की रहती है कॉन्सटेंट रहती है। सो हरेक पॉइंट के उपर की है या कोई भी अगर आप इलैक्ट्रिकल कोई कंपोनेंट यूज़ किया है, कोई कंडक्टिंग एलीमेंट यूज़ किया है, सब दे विचों की है सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होएगा। सो अगर आप एक एग्जाम्पल लीए, मान लो आपने को एक इलैक्ट्रिक बल्ब है, इलैक्ट्रिक बल्ब या लैंप इलैक्ट्रिक बल्ब है, नाल आप की है कोई इलैक्ट्रिक हीटर ले लीए। सो अगर आप दोनों सीरीज़ के ज्वाइन कर देवेंगे दैन दैट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल, वो की है पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर आप सीरीज़ के ज्वाइन कर रहे हैं दैन दैट मीनस दोनों के विचों जो करंट पास हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, लेकिन जिहड़ियां दोनों की करंट नीड्स ने, मतलब एक नूं की है डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए है टू वर्क प्रॉपरली और दूसरे नूं की है उन्होंने भी डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए है टू वर्क प्रॉपरली। सो इन दैट केस अपना की है वो सर्किट की है पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिसेबल नहीं है, आप उन्होंने की है नहीं उस तरह वर्क करवा सकते। सो दैट इज़ वाई एक ही है एक सीरीज़ कॉम्बीनेशन की एक कह लो डिसएडवांटेज है कि हरेक कंपोनेंट के थ्रू की है सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है कि अगर आपको बाई चांस एक दे विचों घट या एक दे विचों ज़्यादा करंट पास करवाना हो दैन उस टाइम पर आप की है सीरीज़ कॉम्बीनेशन को अवॉइड करांगे। उस तो इलावा एक होर डिसएडवांटेज की है सीरीज़ कॉम्बीनेशन की कि मान लो अगर सीरीज़ कॉम्बीनेशन दे विच कोई एक कंपोनेंट खराब हो गया, सो एक कंपोनेंट के खराब होने दे नाल जो सारा सर्किट है वो की है डिस्टर्ब हो जाएगा, मीनस ब्रेक हो जाएगा। जब एक कंपोनेंट नहीं काम कर रहा दैन वो करंट की है आगे पास ही नहीं होएगा। सो अगे नहीं पास होया दैट मीन सारा सर्किट की है ब्रेक हो गया। सो वो नाल की है अपना सर्किट वो भी की है वर्क नहीं करेगा। सो दैट इज़ द सैकेंड डिसएडवांटेज। या तुसीं देखिया भी होएगा कि जिमें कोई फेस्टिवल के टाइम या दिवाली वगैरह के टाइम या कोई मैरिज फंक्शन के टाइम जो आप घरों में लाइटनिंग यूज़ करते हैं, सो जो लड़ियाँ होंदियां हन वो भी की है सीरीज़ कॉम्बीनेशन के अटैच होंगे हैं छोटे छोटे बल्ब्स। सो अगर किसी एक लड़ी के कोई एक बल्ब की है फ्यूज़ हो जाए खराब हो जाए दैन वो की है इलैक्ट्रीशियन की है बहुत मतलब मेहनत करके फाइंड आउट करना पैंदा है कि किहड़े बल्ब के प्रॉब्लम आई है, सो दैट कि अगर वो रिप्लेस करेगा ओनली दैन की है सारी की है वो अपनी जो लाइटनिंग वाला वर्क है वो प्रोसेस की है एज सच काम कर पाएगा। सो नाल दी नाल अगर आप पैरेलल कॉम्बीनेशन की गल करिए, सो पैरेलल के केस दे विच पैरेलल के केस दे विच की है जो ये पहली डिसएडवांटेज सी वो ये की है कवर हो रही है। सो वो किस तरह कवर हो रही है बिकॉज पैरेलल की है जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन द कंपोनेंट्स।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਿੰਗ ਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਸੀ 1 2 3, ਲੇਕਿਨ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਦੈਨ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹਨ ਓਵਰ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ RS is equal to R1 plus R2 up to so on, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਹਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।